Compared to MSc. Compared to MSc. Is it clear? Yes, sir. My second reason. Second reason. Till today, in our village, in our country, in our native places, engineer and doctor is called A-graded educated person. Educated person means अच्छा पढ़ाई किया इंजीनियरिंग बना इंजीनियर बना अच्छा पढ़ाई किया डॉक्टर बना इसीलिए you can so you get your collars high means you are a educated person, good educated persons, not like that, but till our village, in our native places, in our country are thinking about that. So that's why the second reason I'm doing this BTech for these two reasons. I don't know, in statistics says more than 90% cases doing this kind of reasons doing the BTech or engineering, if I'm not wrong. Am I right? Yes, sir. Very good. So coming into the reason number one, 80% job opportunity. Now it may be reduced. But बीटेक हम लोग किया है, कोई बोला है डिस्टेंस जॉब पाने के लिए, तो बेसिकली we are doing our BTech basically to get the job, nothing else. We doing our BTech to get the job, right? So job किस टाइप का होता है बोलो तो? As you are a student of REC, you are not a student of MIT or you are not a student of IIT, right? So there are two type of company. One is a core company and another is a software company. One is a core company and another is a software company, right? So there are two types of company visit in our colleges. You cannot say, sir, I will be fittest for the core company or I will be fittest for the software company. कोई भी कंपनी में जॉब मिल जाए तो अच्छा है, दोनों कंपनी ठीक ठाक है, तो तुमको कोई भी कंपनी में जॉब मिलना चाहिए. दिस इज योर फर्स्ट एंड प्राइम क्राइटेरिया. तुम MIT में पढ़ते थे, कोई IIT में पढ़ते थे, तुम सोच सकते थे जो हम कोर कंपनी में ही जाएंगे, सॉफ्टवेयर कंपनी में नहीं जाएंगे. मगर as you know, these are the state level colleges like BIT Sindri, like Ramgarh Engineering College, like BIT Misra. You cannot say like that you will be fittest for the core company or you will be fittest for the software company. तुम दोनों कंपनी के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा. You should be prepare yourself, much more better than the others in a core company and a software company. तुम दोनों कंपनी के लिए तुमको प्रिपेयर करना पड़ेगा as much as possible. Is it clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अभी sir. देखते हो ये जो सॉफ्टवेयर कंपनी या कोर कंपनी के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए हम लोगों को. All of you are from electrical engineering, am I right? Yes, sir. Yes, sir. Anyone from any different department? No, sir. Very good. So कोर कंपनी के लिए तुम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा? Like machine, Core subject. core subject, like control system, like DSP, like EM theory, like etc. Out of the several subject, you should be learn 3 subject. Out of several subject, you should be learn and prepare minimum 3 subject. Maximum there is a no limit. Sky is your limit. Minimum 3 subject you should be prepared. And the for software company like C, Programming. like data structure subject which is available in your syllabus, and like numerical, like maybe Java, maybe DBMS, whatever you have, maybe networking, whatever you have, right? So 3 subject for the software company and 3 subject for the core company is very, very, very much requirement. Is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Sir, next, my question is that how you prepare? How you prepare? Means
your preparation require how means say you have a 4 different chapter in microprocessor. How many module is there? 5 module is there. Am I right? Or 6 module? How many modules in microprocessor syllabus? Sir, 5 module. 5 module. Just see. Are you see the syllabus? There is a mistake in syllabus. You ever been seen the syllabus? Just see module 4, the last 2 line and module 5 first 2 line are basically same. ये तो पढ़ाई करने का जरूरत नहीं है, कौन सिलेबस बनाया हमको पता नहीं है। और WBT का वेस्ट बंगाल में जो सिलेबस था मैंने बनाया था, मगर इधर में कौन सिलेबस बनाया हमको पता नहीं है। देखो मॉड्यूल 4 लास्ट 2 लाइन एंड मॉड्यूल 5 फर्स्ट 2 लाइन आर बेसिकली सेम, जस्ट कॉपी पेस्ट। मतलब सिलेबस अभी आज तक हमको लग नहीं रहा है कोई होने के बाद कोई खोल के भी देखा है, ऐसा गलती तो नहीं होना चाहिए। जो भी है, तो तुम्हारा 5 डिफरेंट चैप्टर्स है, राइट? क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? 5 डिफरेंट चैप्टर है। यस सर। अभी मान के चलो हमारा जो टाइम मिला, जितना देर तक हम पढ़ाया और सप्तर्षि सर ने तुम लोगों को जितना देर तक पढ़ाया, सब मिला के टोटल 4 चैप्टर इज कंप्लीटेड अप टू द एंड ऑफ द सेमिस्टर। चारों चैप्टर कंप्लीट हुआ, तुम चारों चैप्टर पढ़ के गया है, ठीक है। अभी इंटरव्यू में मान के चलो ये 5th चैप्टर से क्वेश्चन पूछा, from interview the question is asked from the 5th chapter, then what will be happen? You cannot give the answer because No, वो तो तुम sir. पढ़े ही नहीं हो, so you will not get the job because interview is nothing but a final over match। जब मैच ट्राई हो जाता है, 1 ओवर का गेम होता है ना, सेम टू सेम है, ये एकदम सेम टू सेम है। तो ये फाइनल ओवर का मैच है। फाइनल ओवर मैच में एक्चुअली उतना बहुत सारा क्वेश्चंस पूछेगा नहीं, 1 2 4 क्वेश्चंस पूछेगा, बोल पाओगे तो ठीक है, नहीं बोल पाओगे तो नहीं, ठीक है, चलो घर जाओ। अभी देखो क्या होता है इंटरव्यू में। रोल नंबर 4 अंकिता कुमारी। अंकिता, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yeah, very good. Yes, sir. Yeah, Ankita is a very good student and she is getting 9.5 in every semester. And myself, Sudipto, and I am getting 6 point in every semester. Ankita is a very good student and attending all the classes, and he is getting 9.5 in every semester. I am not attending any classes and I am getting 6 point. उसको 9.1 मिला, हमको 6 point मिला, right? अभी इंटरव्यू में होता है क्या, अंकिता को जॉब नहीं मिलता है मगर हमको जॉब मिल जाता है। कैसे पता है? बोला ना मैंने, ये फाइनल ओवर मैच है। अंकिता का नंबर बहुत है मगर वो क्वेश्चन जो पूछा था वो 5th नंबर चैप्टर से पूछा था, और हमने तो क्लास नहीं किया, मैंने बुक फुक से ये चैप्टर पढ़ लिया था, तो इसी से क्वेश्चन पूछा, हमको बोला तो हम बोल दिए। मगर वो सब्जेक्ट जो था ना, वो सब्जेक्ट में मान के चलो अंकिता को मिला था आउटस्टैंडिंग, वो अबव 90%, हमको मिला था जस्ट पास अबव 40%, मींस 40 to 50%। मगर आई एम गेटिंग द जॉब बट अंकिता इज नॉट गेटिंग द जॉब। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल होता है, बहुत सारा एग्जांपल होता है। सो हाउ यू प्रिपेयर सर? तुमको कैसे प्रिपरेशन लेना है, बोलो। तुमको ये 5 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा एज मच एज पॉसिबल, एज यू आर द मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तुमको जो सीवी में लिखोगे, you should be prepare yourself something like as you are the master of that particular subject, and तुमको 5 चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं 4 चैप्टर पढ़ के छोड़ देने से चलेगा। Is it clear? Yes. Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir.
Yes, Yes, sir. sir. Clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Every chapter you should be prepare all the chapter. Every subject you prepare should be all the chapter. जो तुमने सब्जेक्ट में इधर लिखोगे, अब जो तुम कोर कंपनी के लिए 3 सब्जेक्ट एंड सॉफ्टवेयर के लिए 3 सब्जेक्ट, टोटल 6 सब्जेक्ट जो तुम लिखोगे सिलेबस सीबी में, तुमको सारा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, राइट? सर योर हार्ड डिस्क इज वेरी स्मॉल, योर हार्ड डिस्क इज वेरी स्मॉल. तुम्हारा जो हार्ड डिस्क है बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो तुम्हारा जो हार्ड डिस्क है जो वेरी स्मॉल है, जो इज यू नो इट्स अ वेरी स्मॉल हार्ड डिस्क यू हैव. सो ये स्मॉल हार्ड डिस्क में तुम ये 6 सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर याद रखना उतना इजी नहीं है. इज अ वेरी डिफिकल्ट, इज अ वेरी टफ, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारा चीज याद रखना पड़ता है, राइट? कौन सा ड्रेस यस्टरडे मैंने पहने थे, वो मतलब तुम्हारा फ्रेंड कौन सा ड्रेस पहने थे यस्टरडे में, ऐसा बहुत सारा कुछ चीज, तुम्हारा फ्रेंड का नाम, वो क्या खाते हैं, क्या सोते हैं, बहुत कुछ याद रखना पड़ता है. तो हार्ड डिस्क सिर्फ नॉट ओनली फॉर दिस सब्जेक्ट, बहुत कुछ याद रखना पड़ता है. तो इसलिए ये 6 सब्जेक्ट को बढ़िया से हमारा याद में रखना इज नॉट ए इजी टास्क, इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. याद रखना तुम्हारा एक ही सब्जेक्ट है, ओनली वन सब्जेक्ट इन योर होल सिलेबस which you can give in the software company as well as core company, that is nothing but a microprocessor and microcontroller. That is nothing but a microprocessor and microcontroller, right? Only one subject which you can give in the software company as well as core company, that is microprocessor and microcontroller in whole 4 year syllabus. So what will be the benefit for us? क्या बेनिफिट होगा इससे? सर आउट ऑफ 3 एक सब्जेक्ट डन हो गया इधर ही. मतलब टोटल सब्जेक्ट पहले तो 6 था, अभी कितना हो गया? 5. 5. It's a correct answer, and you know it's a very important for us. जो हमको एक सब्जेक्ट कम पढ़ना पड़ रहा है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से दोनों जगह में काम चल रहा है. So that's why this subject is very, very, very much important to get the job. To get the job, nothing else. It's a very, 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 very important to get the job, right? Is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir. I will be explain another point. तुम लोग जानते हो तुम लोग कैसे पढ़ाई करते हो 4 साल में? एक कार्ड बनाएंगे तो कैसे होगा? कार्ड लाइक दैट. ये हम नहीं बोल रहे हैं, बुक्स बोल रहे हैं, हमारा कुछ बात नहीं है. दिस इज 4th ईयर एंड दिस इज 1st ईयर. अभी बोल सकते हो तुम क्वेश्चन, हमको कोई भी टाइम में क्वेश्चंस पूछना हम खराब नहीं लगता, हमको अच्छा लगता है. ऐसा बोल सकते हो सर जो एम्पलीट्यूड है, ये जो पीक है, सर अंकिता 9.5 स्टूडेंट इज अ वेरी गुड गर्ल, बट सर आपने तो 6 पॉइंट मिला है. सर आपका और इसका कार्ब एक ही होगा? कार्ब विल बी द सेम. एम्पलीट्यूड अंकिता के लिए बहुत ही ज्यादा होगा, हमारे लिए थोड़ा कम होगा. अंकिता के लिए ज्यादा होगा, हमारे लिए कम होगा. ये है एम्पलीट्यूड. अंकिता अच्छा पढ़ाई करता है, उसके एम्पलीट्यूड ज्यादा है, हमारा कम पढ़ाई करता है, हमारा एम्पलीट्यूड कम, मगर कार्ब इज बेसिकली द सेम. क्यों? इसका भी एक एक्सप्लेनेशन है. कॉपी में देखो, जब 1st ईयर में था, किसको पकड़े? अमित मेहता. Yes, sir. Amit, are you staying in hostel or you are Delhi scholar? Sir, hostel, sir. Very good. Amit is very perfect person to give the answer. Amit पहले घर में रहता था
Am I right, अमित? Yes, sir. घर में रहता था, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, फिर घर में आ जाते थे। अभी हॉस्टल में जब आ गया, बहुत सारा का फ्रेंड आ गया, किसी का लैपटॉप है तो किसी का कुछ ऑडियो सिस्टम है, मूवी देखना, गान सुनना, स्टोरी सुनना, इसके साथ उसके साथ बात करना, इसके लिए पढ़ाई उतना तेज फर्स्ट ईयर में नहीं था। सेकेंड ऑफ रीजन था, जो तुम लोगों को सीनियर पकड़ने वाला है, बाहर जाओगे तो सीनियर पकड़ेगा, तुम्हारा नाम क्या, पता क्या, घर किधर है, किधर से आए हो, इंट्रो दो, क्या खाना खाते हो, रात में सोते हो कि नहीं सोते हो, सारा कुछ डिटेल्स उसको चाहिए। तो इसके लिए हम लोग का पढ़ाई थोड़ा हैम्पर होता है फर्स्ट ईयर में, isn't it? Yes, sir. बहुत ज्यादा। नेक्स्ट जब सेकेंड ईयर में तुम चढ़ गए थे, तुम लोग सारे के लिए बोल रहे थे, मोहित के लिए नहीं, तुम्हारा 2 विंग्स पहले से ही लग गया था। विंग्स मतलब पंखा, जो इधर उधर उड़ सकते हो, इधर उधर चल सकते हो। जब इंजीनियरिंग में तुम लोग घुसे थे, whenever you are enter into the engineering, you have 2 wings. But whenever you enter into the second year, you have another 2 wings. So you have 4 wings. Now, तुम्हारे पास 4 पंखा हो जाएगा, तुम इधर उधर घूम सकते हो। 2 पंखा क्यों बढ़ गया? तुम जो सीनियर जो बन गए हो, अभी तुम्हारे पास, तुमको जूनियर को पकड़ना पड़ेगा, उसका नाम क्या है, पता क्या है, घर किधर है, किधर से आ रहा है, खाना क्या खाता है, हाँ, इंट्रो दो, ये दो, वो दो, बहुत चलता है। तो सेकेंड ईयर में जब चल जाता है तो स्टूडेंट लोगों का थोड़ा और भी ये में पड़ जाता है, जो हम लोग का बहुत कुछ करना है। तो इसीलिए सेकेंड ईयर में भी पढ़ाई उतना तेज नहीं होता है। थर्ड ईयर मीन्स योर ईयर सबसे ज्यादा पढ़ाई करता है पूरा 4 ईयर में। क्यों? इन लोगों को पता चलता है अभी 4th ईयर का शुरुआत में ही कुछ कैंपसिंग होने वाला है, कोई TCS हो, चाहे कुछ भी हो, कोडविटा हो, बहुत कुछ है। तो इसमें हमको दाखिल लेना है, तो अभी से हमको पढ़ना पड़ेगा। अभी हमको इसमें नौकरी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो थर्ड ईयर स्टूडेंट लोग सबसे ज्यादा पढ़ाई करता है। यू नो, फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स इज डूइंग वेल, मींस एवरीवेयर, नॉट ओनली फॉर योर कॉलेज, इन एवरीवेयर। थर्ड ईयर का स्टूडेंट सबसे ज्यादा पढ़ाई करता है। जो स्टूडेंट लोग सबसे ज्यादा जितना पढ़ाई करता है, उसको उतना अच्छा करियर बनता है फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट। 4th ईयर में क्या होता है? 4th ईयर में किसी किसी को नौकरी मिल जाता है, किसी किसी को नहीं मिलता है। जिसको नौकरी मिल जाता है उसको तो भगवान का दर्शन मिल गया, मान के चलो। वो तो ना कॉलेज आता है ना कुछ पढ़ाई करता है। आज जिसको नौकरी नहीं मिला, वो क्या करता है? हर एक टाइम में जितना बार भाईबा लिया, जो भी किया, सर बहुत प्रेशर में है, क्या हुआ, नौकरी नहीं मिल रहा है, उसके लिए क्या कर रहे हो? सर रात में जल्दी जल्दी सो जा रहा है और बहुत लेट उठ रहा है सर, 10 बजे उठ रहा है सर। तो पढ़ाई सर बहुत प्रेशर में है सर। वो सारा जिंदगी भर प्रेशर में ही रहता है, कभी पढ़ाई नहीं करता है। प्रेशर कभी खत्म नहीं होगा। इसके लिए 4th ईयर में पढ़ाई उतना होता नहीं है, और 4th ईयर के बाद जो जो पढ़ाई किए थे वो भी थोड़ा भूल जाओगे। यह सिचुएशन। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सर, थैंक यू Yes, sir. थैंक यू सर। अच्छा, अभी देखो ये थर्ड ईयर क्यों बोला, थर्ड ईयर पढ़ाई में क्या है, उसके साथ ये माइक्रो प्रोसेसर का क्या लेना देना है कुछ लिंक अप है, इसीलिए मैंने बोला, नहीं तो नहीं बोलते थे। किसको इंटरव्यू में बुलाए? रिया कुमारी, कैन यू हियर मी? Yes, sir. वेरी गुड। रिया, यू आर कमिंग फॉर इंटरव्यू, रोल नंबर 16। क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मत टेंशन करो। Yes, sir. रोल नंबर 16, am I right? Yes, sir. अच्छा, तुम इंटरव्यू में आए हो, कितना जन इंटरव्यू लेगा? मान के चलो 4 जन इंटरव्यू ले रहे, 4 पर्सन। बहुत कम है, पर्सन इज 4, पर्सन इज 4। A, B, C and D, 4 person is taking the interview. Ria, you are from electrical engineering department, am I right? Yes, sir. अभी तुम लोग बोलो तो कोई भी बोल सकते हैं। 4 जन जो है A, B, C, D, all are from electrical engineering. No, sir. All branch. No, sir. No, sir. Different branch will be there. No, sir. All branch. Different branch will be there. कैसे होगा सर? मान के चलो A from ECE, मान के चलो B from EIE,
मान के चलो सी फ्रॉम मैकेनिकल, मे बी कंप्यूटर साइंस, मे बी कंप्यूटर साइंस। मान के चलो डी इज अ वेरी बेटर लक फॉर रोल नंबर 16, डी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फेवरेट सब्जेक्ट, रिया ने बताया। देखो कुछ सब्जेक्ट तुमको बताना पड़ेगा, इंटरव्यूअर्स विल बी आस्क्ड द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली, नॉट फ्रॉम द ऑल सब्जेक्ट, क्योंकि तुमको 50 सब्जेक्ट तुमको पढ़ाया है, वो इतना सब्जेक्ट तुमको याद रखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो हो नहीं पाएगा। तो तुम जो सब्जेक्ट बोलोगे उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रिया ने क्या बोला, बोला ईएम थ्योरी, बोला मशीन, और क्या बोला, और बोला मान के चलो कंट्रोल सिस्टम, नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम। नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम मतलब एडवांस कंट्रोल सिस्टम, मतलब डिजिटल कंट्रोल सिस्टम। तुम लोग वो अभी पढ़े हो क्या, नहीं पढ़े हो? शायद नहीं पढ़े हो ना? नो सर। पढ़ोगे। डिजिटल कंट्रोल सिस्टम इज देयर इन योर सिलेबस, मे बी इन अ 6th सेमेस्टर, मे बी इन अ 7th सेमेस्टर, इट विल बी देयर। सो तीनों सब्जेक्ट बोला, ईएम थ्योरी, मशीन एंड कंट्रोल सिस्टम। सर इसी जो फैकल्टी है, जो टीचर्स है, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, ये नेवर ये सब्जेक्ट का नाम कभी सुने ही नहीं है, उसका सिलेबस में था ही नहीं, तो कैसे नाम सुनेगा, राइट? Yes, sir. हैं? नाम सुनेगा कभी? ईएम थ्योरी उसका नहीं था, उसका मान के चलो मशीन्स नहीं था, वो कैसे नाम सुनेगा? मगर इंटरव्यू में तो क्वेश्चंस पूछना चाहिए, क्वेश्चन तो पूछेगा ही ना पूछ के तुमको नौकरी में ले लेगा, ऐसा होता है क्या? No, हाँ sir. सर। क्वेश्चंस तो पूछेगा ही वो लोग। तो क्या क्वेश्चंस पूछेगा? इसी जो है फैकल्टी वो सोच रहे हैं अभी क्या क्वेश्चंस पूछेगा, ये तो सारा हमारा सिलेबस का बाहर है, मगर कुछ ना कुछ तो क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा। सो ही विल बी आस्क्ड व्हाई ईएम थ्योरी इज कॉल्ड ईएम थ्योरी, व्हाई ईएम थ्योरी इज कॉल्ड ईएम थ्योरी, ईएम थ्योरी को क्यों ईएम थ्योरी बोलता है? अभी रिया क्या आंसर देगा बोलो तो, कोई भी। मैंने बहुत सारा इंटरव्यू लिए हैं, इसलिए हमको कुछ जानकारी है। रिया क्या आंसर देगा? Actually, the same has happened with me Huh? in the interview. हैं? So the same has happened with me in the interview. तुम क्या आंसर दोगे? जस्ट सी माई फेस, यू विल बी गेट द आंसर। सर आज सुबह में पढ़े थे सर, जस्ट पढ़े थे, भूल गया सर। सर थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे सर, ये मतलब सुबह में पढ़ के आया था। व्हाई ईएम थ्योरी इज कॉल्ड ईएम थ्योरी इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन सर, इज वेरी सिली क्वेश्चंस, आई जस्ट डोंट रिकॉल सर, बहुत खराब लग रहा है सर, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे। अभी इसी बंदा सोच रहे हैं मौका मिल गया है, इसको इधर ही खत्म करना है। अरे तुमको ये भी पता नहीं है कौन सा कॉलेज से पास किए हो रिया? बोलो रिया, बोलो कौन सा कॉलेज से तुम पास किए हो? Yes, sir. कौन से कॉलेज से पास किए हो? So Ramgarh Engineering रामगढ़ College. इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, So Ramgarh Engineering. रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। कब खुल गया भाई? हमारा टाइम में तो ऐसा कॉलेज का नाम कभी सुने नहीं थे। एक बीआईटी मिश्रा था, सिंदरी चल रहा था कुछ, आज तो कोई कॉलेज नहीं था। आईएसएम तो था, मगर रामगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज, वो भी पॉसिबल है क्या? किधर से आ जाता है भाई? ये देखो ये सिली क्वेश्चन था भाई, ये क्वेश्चन नहीं बोल पाएगा तो क्या पूछेंगे हम? तुम तो जानते हो हम 11 साल इसी के ऊपर काम किया, ईएम थ्योरी के ऊपर, हम तो हमारा फील्ड ही वही है। अभी रिया सोचेगा कि क्या कितना कुछ जानता है सर, मगर हम कुछ भी नहीं जानता है। अभी यही जो बंदा, वो भी एक ही चीज सोचेगा, जे ये पार हो गया, इसके कंधे में बंदूक रख के हम भी पार हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं छोड़ो, आजकल का स्टूडेंट लोग है ना, यही का जो है वो बोलेगा, आजकल का स्टूडेंट लोग ऐसा ही आ जाता है, जनरल कॉन्सेप्ट एकदम नहीं है। ऐसे तो सिली क्वेश्चन है, ऐसे आंसर नहीं बोल पाएगा। मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, वो भी ऐसा बोल के पार हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल का जो फैकल्टीज है, you will be think about the questions is not correct, but he cannot say anything because you are a candidate। ऐसा लाखों कैंडिडेट आपके जैसा बाहर में खड़ा है,
and these are the nothing but a colleagues. Colleagues के साथ कभी झमेला नहीं करेगा, झंझट नहीं करेगा due to you. So वो 2-4 को क्वेश्चंस पूछेगा रिया को, रिया बहुत अच्छा से आंसर देगा, बहुत अच्छा आंसर्स देगा, you know, very good answers you will be give, or she will be give, but maybe electrical faculty will be satisfied, but as the rest 3 faculty members or board members are not satisfied, so Riya will not be get the job. रिया सोचेगा हम तो इंटरव्यू बढ़िया दिया था, एक सर ने 5 क्वेश्चंस पूछे थे, हम 5 को 4 आंसर दे दिया था, मगर हमारा जॉब क्यों नहीं हुआ? सो इसी का रीजन से नहीं हुआ. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट सर, तो ऐसा सब्जेक्ट तुमको देना पड़ेगा जो कि ना हर एक ब्रांच में है, जो कि ना हर एक ब्रांच में है, हर एक डिपार्टमेंट में है. अदरवाइज he or she cannot ask the questions. Otherwise he or she cannot ask the questions. जो हर एक डिपार्टमेंट में हो, जैसे हिस्ट्री जियोग्राफी देने से नहीं होगा, जैसे इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट देना होगा. माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर इज कॉमन फॉर ऑल द डिपार्टमेंट, फॉर ऑल द डिपार्टमेंट. इसी का है, EI का है, मैकेनिकल का मेगाट्रॉनिक्स बोल के एक सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस में है, इलेक्ट्रिकल में तो है ही. तो ये सब्जेक्ट देते थे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस वो जरूर पूछता था. चलो अभी हम बोलते हैं, तुम लोग इसके बाद जब पढ़ाई खत्म कर दोगे, तुम लोग कौन सा सब्जेक्ट याद रखोगे? जो लोग तुम 3rd ईयर में पढ़े हो, याद रखना, जो लोग तुम 3rd ईयर में पढ़े हो वही तुम लोग का याद में रहेगा आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 20 इयर्स. बिकॉज 3rd ईयर के बाद स्टूडेंट लोग ज्यादा पढ़ाई करता नहीं है. 3rd ईयर मैक्सिमम पढ़ाई करता है, जो याद रखता है 3rd ईयर में रहता है. ये सब्जेक्ट जो है हर एक ब्रांच का 3rd ईयर में है, आइदर 4th सेम और 5th सेम और 6th सेम, इन तीनों सेम के अंदर है. इसीलिए दिस सब्जेक्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू गेट द जॉब फॉर योर करियर. एंड यू नो, विदाउट दिस सब्जेक्ट योर करियर विल नॉट बी स्मूथ. सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इट इज नॉट माय लेक्चर, इट्स अ ट्रूथ. इज क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. सेमेस्टर मार्क्स के लिए तुमको ये सब्जेक्ट पढ़ना नहीं है, तुमको जॉब पाने के लिए सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग तो बहुत जन को बहुत टाइम दिया है, फ्रेंड को बहुत टाइम दिया है, बहुत सारा फैकल्टी को बहुत सारा टाइम दिए हो, मम्मी को बहुत टाइम दिए हो, डैडी को बहुत टाइम दिए हो. यू गिव मी 50 आवर्स, 40 to 50 hours to me. I assure you, you will be the master of that particular subject. तुम्हारा कितना IQ है नहीं है वो हम देख लेंगे, हमारे ऊपर फेथ रखो. 40 से 50 आवर तुम हमको दो, तुम्हारा ये सब्जेक्ट इतना अच्छा तुम जान जाओगे जो तुम कभी ना भूलोगे, और इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम बोल पाओगे. ये हम 100% श्योर, 100 नहीं 200% श्योर. हम लाखों स्टूडेंट हमारे हाथ से निकल गया है इस सब्जेक्ट में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमको लगता है. इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सब्जेक्ट तुम लोग को पढ़ना है, राइट? क्यों पढ़ना है समझ में आया ना? कोई डाउट्स है तो बोलो. No doubt, sir. No, sir. सिर्फ No, sir. सेमिस्टर के लिए नहीं, सिर्फ सेमिस्टर के लिए नहीं, तुम्हारा करियर के लिए सब्जेक्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ, राइट? राइट? Yes, sir. Yes, sir. शुभम इज करेक्ट टू यू? Yes, sir. Fine. ओ, बात नहीं कर रहे हो? जितेंद्र, जितेंद्र, Yes, sir. Yes, sir. thank you to all. So let's start our journey. जब आप तक जितना से कुछ पढ़ाया वो एग्जाम में नहीं आएगा. अभी जो पढ़ाएंगे नेक्स्ट हाफ एन आवर वो है रिकैपिंग ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, रिकैपिंग ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. नेक्स्ट हम आएंगे माइक्रोप्रोसेसर टुडे इटसेल्फ. चलो देखते हैं फर्स्ट एक हेक्साडेसिमल एडिशन AB plus CD. What will be the additions?
Anyone can give the answer. आंसर देने का जरूरत नहीं, कैसे करोगे वो बताओ. अच्छा, हेक्साडेसिमल नंबर तुम लोगों को पता है ना, वो बोल देता है. सॉरी, हेक्साडेसिमल नंबर क्या है वो एक बार बता देते हैं. जीरो, 1, 2, 3 up to 9. Then A, B, C, D, E and F. So A means 10, B means 11, C means 12, D means 13, E means 14 and F means 15. Clear to all? Yes, sir. Sir, how many numbers are there? Sir, 16. 0 से 15 means 16. So इसका 16 नंबर है, इसीलिए इसका बेस होगा 16. याद रखना. जैसे डेसिमल में कितना नंबर है? 0 to 9. कितना नंबर हुआ? 10. 10. तो इसका बेस होगा 10. 10. वेरी गुड, थैंक यू. तो ये एडिशन अभी कैसे होगा वो बताओ. कोई कुछ आइडिया बोलो, जो भी मन में आ रहा है वो बोलो. आई एम नॉट ए टाइगर, हम तुम लोग को खा नहीं लेंगे, बहुत दूर में है. बोल सकते हो कुछ भी आंसर. कैसे करेंगे वो बताओ. एडिशन करने का जरूरत नहीं है. सर डेसिमल में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं. डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद एडिशन करके फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? यस सर. और एक कर सकते हैं, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में एडिशन करेंगे, फिर रिजल्ट को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. मगर हम ऐसा नहीं Yes, sir. कराएंगे तुम लोगों को. हम ऐसा नहीं कराएंगे. पहले बोलो तो एक डेसिमल नंबर 78, 96 ऐड कर रहे हो, कैसे करते हो? 8 + 6 क्या होता है? 14, sir. 14. 14. 4 will be put over here, 1 is coming here as a carry, am I right? Yes, sir. Sir. 4, Yes, sir. you know, after addition 4 will be coming over here and 1 is a carry. Is it clear to all? Yes. यस सर. Yes, sir. So sir, why 14 के जगह में 4 इधर आ जाता है, ऊपर में 1 चला जाता है, कैसे? कैरी आ जाता है क्या? बोलो, ट्राई करो. 8 और 6 वंस प्लेस पे है, तो 14 का भी वंस प्लेस सिर्फ लिखेंगे. नो सर, 14 का से हम 10 सब्सट्रैक्ट करते हैं. 10 सब्सट्रैक्ट करते हैं, 4 आता है, जो 4 चला जाता है इधर. 10 मींस 10 into हाउ मच? 1. ये चला जाता है इधर. अभी सर 10 क्यों सब्सट्रैक्ट कर रहा है? ये हम लोग कौन सा नंबर सिस्टम में काम कर रहे हैं? Decimal. डेसिमल. बेस कितना है सर? 10 है 10. सर. 10. सो हम लोग 10 और 10 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. वी कैन सब्सट्रैक्ट 10 और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 10. वी कैन सब्सट्रैक्ट 10 और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 10, राइट? हम लोग 10 सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं और 10 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. जैसे मान के चलो एडिशन करने के बाद 24 आता था, तो हम कितना सब्सट्रैक्ट करते थे? 10. 20 सब्सट्रैक्ट. ये 24 आता था तो 20 सब्सट्रैक्ट करते थे. 34 आता था तो 30 सब्सट्रैक्ट करते थे. तब 10 into 3 होता था, 3 चला जाता था इधर कैरी, राइट? तो अभी ये क्या आएगा? 9 + 1, 10 + 7, 17. 17 minus 10 again. So 7 will be put over here and 10 means 10 into how much? 1. 1 coming here as a carry. 174 is the answer, right?
ये है डेसिमल के एडिशन था, ये डेसिमल के एडिशन था। इज इट क्लियर टू ऑल? डेसिमल एडिशंस। Yes, sir. अभी हेक्साडेसिमल, बी मतलब कितना है मैंने Yes, आपको sir. दिया पहले। बी मतलब कितना? 11 sir 11। 11. डी मतलब? 11 डी मतलब? हाँ 14 13। 14 sir हाँ 13 sir 13 13 sir. 13 13 प्लस 11 कितना होगा? 24. 24। सो 24 से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 16. 16 एग्जैक्टली सर, बिकॉज बेस ऑफ द नंबर सिस्टम इज 16। इधर 10 का कॉन्सेप्ट नहीं होगा सर, 10 20 सब सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। इधर कैसे होगा? 16 32 48 64 80 एंड सो ऑन। क्लियर? Yes, sir. मंजिता क्लियर? yes sir मंजिता क्लियर? Yes, sir. थोड़ा कुछ आवाज पास दो, नहीं तो कैसे पता चलेगा हम क्लियर हो रहा है कि नहीं। कोई डाउट है तो हमको पूछो, हम 100 टाइम्स बोल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमारा। हम 2-4 क्लास में सिलेबस खत्म करने वाला आदमी नहीं है, डेप्थ में पढ़ाऊंगा, पूरा डेप्थ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 24 से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 16। कितना आएगा? 8. 8 will be put it over here, right? 16 into how much? 1. 1. 1. 1 coming here as a carry. मान के चलो 32 सब्ट्रैक्ट करते थे तो 16 into how much है? तो how much? 2. Then 2 will be coming as carry. 48 then 16 into how much? 3 will be coming here as a carry. So 10 plus C मतलब 12. 12 plus 1 कितना होता है? 12 plus 10. 12 plus 2 22 plus 1 23. 23. Yes, So 23 minus 16 again कितना आएगा? 7. 7 will be put it over here. 16 means 16 to how much? 1 coming here as a carry, so 178 is the answer. Clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Thank Yes, you. sir. If any doubt you can ask. सर 1 इन कैसे हो रहा है सर? 1 into कैसे कर रहे हैं? ये जो 16 सब्ट्रैक्ट किया ना, यस सर। ये 16 का कितना मल्टीप्लिकेशन, मतलब मान के चलो 32 भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 48 भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 16 का कितना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा? 16 into 1, 16 into 2, 16 into 3। तो 16 का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आएगा वही आ जाएगा कैरी में। ठीक है सर, हो गया, समझ गया। ठीक है, यस सर। अभी चलो EF, CD, 9C, 4E, 3F, 95. Add all those. Okay, 75. Add all those numbers. I'm repeat. What are the number I'm told? EF, CD, 9C, 4E, 3F, 95 and 75. एडिशन करना है। कॉपी है ना तुम्हारे पास? कॉपी खोलो, है कि नहीं है? वेट करे। एक कॉपी ले लो माइक्रोप्रोसेसर के लिए, बहुत काम में आएगा, बहुत काम में आएगा। पूरा जिंदगी भर तुमको ये सब्जेक्ट काम में आएगा। कितना यार? पहले ये वाला ऐड करो, इस साइड वाला
एफ मतलब कितना 15 15 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 79 हो रहा है सर। 79 79 सर। पंकज कुमार महतो कितना आ रहा है 15 रोल नंबर। पंकज कुमार मेहता रोल नंबर 15 सर 89 आ रहा है। 89 आ रहा है। ये तो प्लेन एडिशन था। 15 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 5। प्रियदर्शी प्रियदर्शी Yes, sir. 75. 75 79 Oh, so sir, 79. Sorry, sir. 79 तो 79 आ रहा है राइट। यस सर। 79 से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 16. 64 एग्जैक्टली सर। हाँ, थैंक यू 64. सर थैंक यू सर 64। Yes, sir. क्यों 16 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो 79 से छोटा है। Yes, sir. 80 तो पॉसिबल नहीं है तो No, 64 sir. सब्ट्रैक्ट किया। कितना आया सर 15 9 5 Fif- 15 आया। 15, sir. 15 मतलब क्या है F. F हम इधर एफ बिठा दिया। 64 मतलब 16 into how much 4 4 coming here as a carry। अभी तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो। सर 58 50 62 होगा सर 4 ऐड हो जाएगा तो 4 ऐड करना पड़ेगा 58 प्लस सर 58 प्लस 4 62। यस सर 62 तो 62 से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे सर 64 पॉसिबल 48 48 48 एग्जैक्टली। वेरी गुड थैंक यू। कितना आएगा 14 हैं 14 14 14 मतलब सर 14 सर ई E वेरी गुड। 48 मतलब 16 into how much 3 coming here as a carry which will put it over here, so 3EF is the answer। yes sir clear to all। यस सर। ऐसा माइक्रो प्रोसेसर कराने का sir. टाइम Yes, sir. Fine. बहुत सारा एडिशंस आएगा बहुत सारा एडिशंस आएगा। हम शुरुआत में बोल दिया और हम नहीं बताएंगे। सो यू हैव ए ड्यूटी। देखो नेक्स्ट दिन से जो स्टूडेंट हम तो इतना कम स्टूडेंट पढ़ाता नहीं है कभी आज तक पढ़ाया नहीं। हमारा स्टूडेंट कभी भी 60 में 59 नहीं होता है। 60 स्टूडेंट स्ट्रेंथ है तो 60 आता है कभी कोई एब्सेंट नहीं होता है। तो तुम लोग भी बाकी सबको बोलना क्लास में आने के लिए। क्लास में नहीं आने से तो समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। और ये जो देखो ये जो एडिशंस है ये तुम लोग उन लोगों को समझा देना नहीं तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। बाद में जब हम करेंगे फास्ट उन लोगों को समझ में नहीं आएगा वो लोग कैच नहीं कर पाएगा। सो 3EF इज इट क्लियर। यस सर। नेक्स्ट चलो हम लोग सब्सट्रैक्शन yes sir सब्सट्रैक्शंस में जाता है। सब्सट्रैक्शन -52 -14 तुम्हारा सब्सट्रैक्शन जो तुम लोग करते हो 52 - 14 क्या करते हो डेसिमल सब्सट्रैक्शन। 2 को क्या अज्यूम करते हो 12। वाओ सर कैसे आता है 2 को 12 बोरो लेके लेते हैं सर। मतलब इसका बेस 10 है इसीलिए 2 + 10 करता हूं। इसका बेस 10 है इसलिए 2 + 10 = 12 हो जाता है राइट। इसका sir. बेस 10 है इसीलिए 2 + 10 करता हूं 12 हो जाता है। 12 से 2 सब्ट्रैक्ट करने से कितना आता है 4 सब्ट्रैक्ट करने से 8 8। देन क्या करता हूं
either 5 will be reduced by 1 or 1 will be increased by 1. 2 को 12 पकड़ा हूं, इसीलिए 5 will be reduced by 1 or 1 will be increased by 1, whatever it is, or not both. So 5 will be reduced by 1. It will be the more scientific. So 4 minus 1. So how much? 3. Huh? 3. 3. 3. Right? 3. Right? चलो Yes, sir. देखते हैं अभी D2 minus 14 क्या होगा? D2 minus 14 क्या होगा? टू को अभी कितना एज्यूम करे? बोलो। पहले 2 को कितना एज्यूम किए थे? 12. 12 अभी 2 को कितना एज्यूम करना है? 2 प्लस कितना किए थे? 18 होगा। 18. 18 Yeah, होगा। 18 होगा, 18 ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। 2 प्लस 16 करेंगे, इधर 18 होगा। 18 राइट? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर टू ऑल? पहले 2 प्लस 10 किए थे, देखो इसके चलते 12 आए थे। ए हेक्साडेसिमल नंबर है, दैट्स व्हाई यू नो 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। Is it clear to all? Yes, sir. So 2 Yes, plus sir. 16 is equal to 18. So 18 minus कितना होगा? 4. 4 कितना आएगा? 14. 14 मतलब E. very good, E. Okay? Is it clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Then next D assuming as a D assuming as a C. 13. C. C. C minus 1 मतलब 12 means B. B. Without this subtraction, you cannot Bachelor of Engineering. Is it clear? ये subtraction का बिना Yes, sir. तुम इंजीनियर नहीं बन पाओगे। BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हमें सोच के दिए थे। सही है सर। क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ, Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट्स है? No, sir. No, sir. अभी तक सब ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो आगे भी ठीक ही रहेगा। चलो अभी देखता है हेक्स टू बाइनरी कन्वर्शन। तुम लोग अभी सोच रहे होगा जी सर हेक्साडेसिमल लेकर इतना क्यों बोल रहे हैं? ऑक्टल नंबर सिस्टम है, बाकी डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल सर के दिमाग में क्यों आ गया? 8085 माइक्रोप्रोसेसर जो काम करता है, जो इनपुट देते हैं हम लोग, जो माइक्रोप्रोसेसर ने आउटपुट देता है, सारा हेक्साडेसिमल में होता है। इज इट क्लियर? इनपुट एंड Yes. आउटपुट बोथ आर Yes, इन sir. हेक्साडेसिमल। Input and output both are in hexadecimal. Okay? Huh? Yes, sir. Yes, sir. Yes. देखो लॉकडाउन में ये माइक्रोप्रोसेसर का फायदा उठा लो। बाकी सारा कॉलेज में उतना कुछ नहीं होगा, तुम लोग बढ़िया से पढ़ो, इससे सब्जेक्ट में तुम्हारा बहुत कुछ देगा। हमको ये सब्जेक्ट ने बहुत कुछ दिया। ही इज माई बेस्ट 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 फ्रेंड। मैंने इस सब्जेक्ट से आईआईटी में पढ़ाया, मैंने इस सब्जेक्ट के लिए एनआईटी में पढ़ाया, मैंने इस सब्जेक्ट के लिए फॉरेन में पढ़ाया। इंडिया से एक जन को चुना गया था, वो हम। तो ये सब्जेक्ट को प्यार करो, बहुत कुछ देगा तुमको, पूरा मतलब भर के देगा। नो इश्यूज। हेक्स टू बाइनरी याद रखना, एक कोड 8421, एक कोड याद रखना 8421। कैसे याद रखोगे सर? 2 to the power 0 कितना होता है? 1 1। 2 to the power 1 कितना होता है? 2 2. 2 to the power 2 कितना होता है? 4 2 to the power 3 कितना होता है? 8. 8 put to 1 put, right? Is it clear? Yes, sir. अभी देखो A B D C 5 4 C
FE2 इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर एक बार रिपीट। ये नंबर है ABDC54CFE20। ये हेक्साडेसिमल में है, इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ABDC54CFE20 हमारा कॉपी में देखो मिल जाएगा। इसको हमारा हेक्साडेसिमल में, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. My question is clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Can I proceed? Yes, Yes, sir. sir. सर ए मतलब क्या है? Yes, sir. 10. 10। अभी बोलो ये 4 के नंबर में कौन सा जोड़ने से तुम्हारा 10 आएगा? 8 और 2. 8 और 2। देखो हम क्या कर रहे हैं, जिसको जोड़ने से 10 आएगा हम उसको 1 कर दिया, बाकी दोनों को 0 कर दिया। तो ए का बाइनरी हो गया 1010। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ए का बाइनरी होगा 8। तुम लोग ही बोला 8 + 2 Yes, कैसे sir. 10 होगा, तो मैंने जो जोड़ने से 10 होगा उस दोनों को 1 किया, बाकी दोनों को 0 कर दिया। राइट? सर बी Yes, मतलब कितना है? 11. किसको जोड़ने से होगा सर? 8 2 81. 8 + 2 + 1, राइट? Yes, sir. Yes, sir. 1011, राइट? Yes, sir. तो ए हो गया ए हो गया बी। सर डी मतलब कितना? 13. किसको जोड़ने से होगा? सर 8 4 1. 841। तो 1 1 1 0 1। 1. राइट? Yes, sir. तो ये कितना हो गया? सी, सॉरी ये डी। अभी सी सर, सी मतलब कितना? सी मतलब कितना? 1100. 12 किसको जोड़ने से होगा? 12. 1100. हैं? 8 + 4 8 4. 1100। Yes, sir. सी 1 1 0 5 5 0 1 0 1 2 0 0 4 0 1 0 0। 0. अब उसके बाद सर सी 1 1 0 0। सर ई एफ क्या होगा? 1 1 1 1 बड़ा 1। 0. ई सर 1 1 1 0। 110 2 सर 0 0 1 0। सर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। Very good. It's the binary of this number. It's clear to all? Yes, sir. Excuse me, sir. Yes, sir. हाँ, बोलो सर। Yes, sir. सर हम लोग सर हेक्साडेसिमल को सर बीसीडी कोड में हमेशा लिखेंगे। बीसीडी कोड है डेसिमल के लिए वो 421 कोड, ए हेक्साडेसिमल टू बाइनरी 8421 कोड। हर एक डिजिट के लिए 4 करके डिजिट लिखना पड़ेगा तुमको, वही हो गया इसका बाइनरी। क्लियर टू ऑल? Yes, sir. yes sir. मान के चलो अभी इसका रिवर्स। बच्चा ऐसा बोला 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1, ऐसा नंबर 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1। इसको हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? कैसे करेंगे सर? सर पहले इधर से 4 बिट है। 4 करके पेयर करो, इधर से 4 करके पेयर करो। देखो 0 1 0 1 मतलब 4 + 1 क्या हो गया? 5. 5. वेरी गुड। इधर से 4 करोगे तो क्या होगा?
2. 2. इधर से 4 करोगे तो क्या होगा? 11. 11. 11 मतलब 8. 11. 11 B. B. B। B सर yes, जी sir. 1 0 है, सामने कुछ नहीं है, मतलब 2 और 0 बिठा लो तो 4 हो जाएगा। Yes sir. तो अभी 2. क्या होगा? 2. 2. तो हेक्साडेसिमल कन्वर्ट हो गया 2B25। 2 5. कंप्लीट। Yes sir. Yes sir. इट्स क्लियर टू ऑल। Yes. Yes sir. लास्ट नॉट लीस्ट, अभी डिजिटल के लिए लास्ट, व्हाट डू मीन बाय टूस कॉम्प्लीमेंट? सुनाई नहीं दे रहे आशीष, तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा इश्यूज होगा। आशीष का सॉरी आशीष, तुम्हारा बात सुनाई नहीं दे रहा है। हेक्स बोलो अभी टूस कॉम्प्लीमेंट, व्हाट डू मीन बाय टूस कॉम्प्लीमेंट? One's complement plus वाओ, कौन बोला? राइज योर हैंड। अंकिता, रोल नंबर 4। yes sir. वाओ, मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम बोला हमारा डैडी का नाम ये है, हम एकलौता डॉटर है उसका। सर हमको थोड़ी वंस कॉम्प्लीमेंट पता है। चलो Sir, डेफिनेशन लिख लो पहले, उसके बाद हम समझाते हैं। अप टू लास्ट नॉन जीरो टर्म, डेफिनेशन लिख लो। अप टू लास्ट नॉन जीरो टर्म is unchanged, then 0 is converted into the 1 and 1 is converted into the 0. That is the 2's complement of a number. Up to last non-zero term is unchanged, then 0 is converted into the 1 and 1 is converted into the 0. That is the 2's complement of a number. Up to last non-zero term, unchanged, then 0 is converted into the 1 and 1 is converted into the 0. That is the 2's complement of a number. Is it clear? Yes sir. तो देखो टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, अभी इसको समझाता हूँ। 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना पड़ेगा, राइट? ये है पूरा नंबर 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0। मैंने डेफिनेशंस में क्या बोला, एक बार पढ़ के सुनाओ। सर मुझे Sir till the मुझे आपको कॉपी नहीं दिख रहा है। क्या बोल रहे हो? दूसरा सुदीप्त चक्रवर्ती का देखो, दूसरा सुदीप्त चक्रवर्ती देखो, 2 सुदीप्त चक्रवर्ती होगा। सर्च करो डॉक्टर सुदीप्त चक्रवर्ती बोल के। मिला है? सर विजिबल नहीं है। क्या विजिबल नहीं है? यस सर विजिबल दिख रहा है। सबको दिख रहा है ना? yes sir. Yes sir. Yes sir. मैंने डेफिनेशन क्या बोला, बोलो पहले। Up to last non-zero टर्म अनचेंज, term it is unchanged and then बस zero is changed. अप टू लास्ट नॉन जीरो टर्म अनचेंज, पहले वो कर लेते हैं। इधर से देखो लास्ट नॉन जीरो टर्म किधर तक है, इतना दूर तक है 1 0 0 0। Yes Am I sir. right? Yes, sir. Yes This sir. is last non-zero term 1 0 0. Yeah, unchanged. It will be unchanged. So 1 0 0 0 will be there. Same. Okay. Yes sir. Then 1 is converted into the 0, and 0 is converted into the 1. This is the 2's complement of this number. Clear to all? Yes sir. Yes sir. Up to last non-zero term is unchanged. This is unchanged.
then 0 is converted, 1 is converted into the 0 and 0 is converted into the 1. Means rest just like a 1's complement. Rest just like a 1's complement. अभी तुम लोग जो कर रहा था पहले 1's complement करके 1 ऐड करो, देखो यही रिजल्ट आएगा। करके देखो एक बार, एकदम सेम टू सेम आएगा, मगर उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Very good. 2's complement हम लोग क्यों करते हैं? Why 2's complement is required? बोलो। बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन एक्चुअली 2's complement ऑफ ए नंबर हम लोग करते हैं टू गेट ए नेगेटिव नंबर फ्रॉम ए पॉजिटिव नंबर। कोई नंबर का 2's complement करना मतलब उसका नेगेटिव नंबर हो जाता है, राइट? यस सर। Yes, sir. चलो हम लोग अभी देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या है। अभी हम एंटर कर रहे हैं, पूरा जो था पुराना उसको हम अभी खत्म किया, अभी नया के लिए हम आ रहे हैं। तुम लोग हर एक दिन एक प्रोसेसर को लेकर काम करते हो, एक माइक्रो प्रोसेसर को लेकर काम करते हो, एक प्रोसेसर को लेकर काम करते हो, क्या नाम है उसका? सर क्या है? कैलकुलेटर। Mobile. स्नैपड्रैगन। कैलकुलेटर फोन का All कैलकुलेटर। the processors, sir. ना, कैलकुलेटर नहीं, Mobile. कैलकुलेटर में प्रोसेसर नहीं रहता है। Phone में, sir. Pentium 4, मोबाइल। Core i3, हाँ Pentium 4, i7, Core i3, i5, i7, all are processor। अभी हम देखते हैं क्या क्या प्रोसेसर आए थे, क्या क्या प्रोसेसर आए थे। हम अभी जो जो नाम लिखेंगे वो मार्केट में कुछ वैल्यूएशन था इसलिए उनको नाम लिखेंगे, वो छोड़ के भी बहुत सारा प्रोसेसर था। अच्छा, आज का डेट में हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं Pentium 4 को, Core i3 को, Core i7 को माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं? बोलो। i7 को क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेस। माइक्रो प्रोसेसर नहीं प्रोसेसर, बोलते हैं। नॉर्मल प्रोसेसर। एग्जैक्टली, नॉर्मल नहीं बोलते, प्रोसेसर बोलते हैं, प्रोसेसर। यस सर। प्रोसेसर बोलते हैं। अभी 64 बिट क्यों इसको प्रोसेसर बोलता है, क्यों इसको माइक्रो प्रोसेसर नहीं बोलते हैं, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं। और पहले क्यों माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता था वो भी हम आएंगे। तो चलो देखते हैं, हम जो जो प्रोसेसर का नाम बोलेंगे वो प्रोसेसर मार्केट में कुछ वैल्यूएशन दिया था, मार्केट में कुछ बोला था। देखो अभी मैंने बुलाने के बाद कोई कोई एक्टिव हो गया, अंकिता अभी एक्टिव कभी कभी आंसर दे रहा है। मंजिता को अभी तक मैंने बोला मगर वो एक्टिव नहीं हो पाया। Am I right मंजिता? सर क्लास में है। क्या है? क्लास में है मगर एक्टिव नहीं है, कोई आंसर नहीं मिल रहा है, ना तुम्हारा से कोई फीडबैक मिल रहा है। सिमिलरली प्रियदर्शी का भी एक ही स्टेटस है। हम ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा हूँ, राइट? क्लियर टू यू? तो देखो अभी जो हो गया उत्सव एंड ऑल, कोई कोई हमारे मन में मतलब स्क्रैच किया, अविनाश कोई कोई हमारे मन में स्क्रैच किया, मतलब ये लोग मार्केट में कुछ अच्छा खासा नाम कमाया, बाकी सारा किंतु उतना नाम नहीं कमा पाया। तो जो जो नाम कमाया मार्केट में, जो जो थोड़ा लॉन्ग चले हैं, उसका ही हम नाम अभी लिखने जा रहा हूँ। क्या क्या प्रोसेसर शुरू से था। पहला प्रोसेसर था, कॉपी में देखो, 4004। सेकेंड प्रोसेसर था 8085। थर्ड इज 8086। फोर्थ इज 8088। फिफ्थ इज 80186। 80286। 80386। 80486। 6
7, 8, उसके बाद 9, P1 Pentium 1, 10 P2 Pentium 2, 11 P3 Pentium 3, 12 P4 Pentium 4, and 13 लिनक्स हाँ लिनक्स हम सिर्फ इंटेल का बोल रहे हैं। ये लिनक्स का प्रोसेसर क्या है मार्केट में पता नहीं हमको। उसके बाद है आपको कोर कोर i3, i5, i7 etc etc। to do भी था। इज इट क्लियर? यस सर। यस तो इतना सारा प्रोसेसर्स मार्केट में आया। किसको पूछे क्वेश्चंस? अंकिता को। अंकिता का काफ बहुत बढ़िया है। क्या डीपी लगाया अंकिता। अंकिता तुम्हारा मोबाइल कौन सा मोबाइल है? रियलमी सर। रियलमी तो बहुत कॉस्टली है। नहीं, कॉस्टली नहीं है। बहुत बहुत कुछ होता है ना रियलमी में, पिक्चर उठाना बहुत कुछ होता है ना। हम जब थर्ड ईयर में था हम मोबाइल खरीदे थे 3315। हम लोग बोलते हैं मतलब उसमें ब्लैक एंड व्हाइट था, कोई मेमोरी नहीं था, कुछ भी नहीं था। इन थर्ड ईयर आई कैन रिकॉल। नोकिया का है एग्जैक्टली। तो अभी देखो धीरे धीरे कुछ कुछ चेंजेस हुआ है, मोबाइल अच्छा हुआ है, कुछ कुछ फीचर्स ऐड हुआ है, तब जाकर नया मोबाइल आया है। Am I right? यस। तो ये सब में भी कुछ कुछ चीज ऐड होते गया, कुछ कुछ चीज ऐड होते गया और अच्छा अच्छा मोबाइल आते गया। राइट? यस सर। यस सर। तुम लोग क्या सोचते हो मोबाइल में क्या क्या फीचर्स आता है जिसके लिए मोबाइल अपडेट होता है, मतलब नया मोबाइल आता है? क्या क्या मेन फोकस रहता है मोबाइल कंपनी को जो इसको अपडेट करना है? सर कैमरा, प्रोसेसर, कैमरा, प्रोसेसर स्पीड, रैम, मेमोरी नहीं, एंड्रॉइड वर्जन सर। मेमोरी, हाँ सर मेमोरी। ये सब कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अपडेट होके नया मोबाइल आता है। राइट? यस यस सर। देखो माइक्रो प्रोसेसर में भी ऐसा कुछ है जो अपडेट होके नया चीज आता है। उसके पहले ये बोलने से पहले दो चीज हम तुम लोगों को बताऊंगा। वो है बास, BUS बास। AB फुल फॉर्म नॉट अमरिक बोशाक, इट इज एड्रेस बस। DB फुल फॉर्म इज डेटा बस। डेटाबेस। तब तो पढ़ा दिया ना तुम लोगों को सर, है कि नहीं? सर ये वाला पढ़े थे सर। ये बार पढ़ लिए हैं तो हम स्किप कर जाए? नहीं पढ़े हैं सर। नो सर, नो सर। सर पढ़ाइए सर। अच्छा पहले बोलो बास, ये नाम किधर सुने हो? सर ट्रांसपोर्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में मतलब बस का मतलब बोलो। आशीष का कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रहा। आशीष तुम्हारा आवाज कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सॉरी। कोई दूसरा कोई बोलो। सर ग्रुप ऑफ वायर्स। ओ बाबा अंकिता, you are so talented, you are 9.5, I am not अंकिता, I am 6 pointer। सर पावर सर सिस्टम। इतना टॉप में क्यों सोचते हो तुम लोग, इतना मतलब दिमाग क्यों लगाते हो? पढ़ाई बहुत इजी होता है सर, बहुत बहुत इजी होता है। इसके टॉप में मत सोचा करो, मैं जिंदगी में कभी इतना टॉप सोचते ही नहीं हूँ। अरे बस जो जिसमें तुम लोग हर एक दिन आना जाना करते हो, व्हीकल है, एक वन प्लेस से टू प्लेस। तुम लोग आना जाना नहीं करते हो एक जगह से दूसरा जगह में। यस सर। कॉलेज कैसे आते हो? बस में आते हो, वही तो है बस सर। मिनी बस, एक्सप्रेस बस, वॉल्वो बस, AC बस, नॉन AC बस, कितना सारा बस है सर। Am I right? यस सर। हर एक को बोलता है पैसेंजर बस।
हर एक को बोलता है पैसेंजर बस बिकॉज इट्स कैरी द पैसेंजर. All the buses is called passenger bus because it's you know it's carry the passenger. It's clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Basically, Yes, sir. ये है पैसेंजर बस. पैसेंजर बस सिर्फ पैसेंजर कैरी करता है. तो देखो एड्रेस बस इज नथिंग बट ए व्हिच इज कैरी द एड्रेस. डेटा बस व्हिच इज नथिंग बट ए कैरी द Data. डेटा. जो भी बस तुम देखे. अच्छा और एक बस बोलता हूँ, वो बस नहीं उसको ट्रेन बोलता हूँ. लोकल ट्रेन कोई देखे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या क्या लोकल ट्रेन देखे हो बोलो? कोई जगह से कोई जगह जाता है ना. देखो हाँ, sir. उसका ना दो साइड में देयर विल बी इंजन इन बोथ द साइड. वो सामने भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है. बैक गियर करके पीछे जाने का जरूरत नहीं पड़ता है. सामने भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है. एम आई राइट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये जो बस है इसको हम लोग बोलेंगे बाई डायरेक्शनल बस. दोनों साइड में जा सकता है. राइट? लाइक Yes, sir. डेटा बस. लाइक डेटा बस ये है बाई डायरेक्शनल. राइट? इज इट क्लियर? Yes, sir. सर एड्रेस बस ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. मतलब तुम्हारा स्टेट बस वॉल्वो बस जो भी बोलो एक ही साइड में उसका इंजन रहता है. एक ही साइड में जा सकता है. मींस यूनिडायरेक्शनल. एक ही साइड में जा सकता है दूसरा साइड में आ नहीं सकता है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एड्रेस बस एंड डेटा बस. एड्रेस बस ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. डेटा बस बोथ बाई डायरेक्शनल. राइट? Yes, sir. अभी एड्रेस बस का फंक्शन क्या है, डेटा बस का फंक्शन क्या है वो हम बताएंगे. एड्रेस बस क्या काम में आता है, डेटा बस क्या काम में आता है वो हम बताएंगे. इधर में सबसे छोटा हाइट का कौन है इस ग्रुप में आउट ऑफ 17? स्मॉल हाइट मंजिता और रोल नंबर 4 और रोल नंबर 16 और रोल नंबर 14, रोल नंबर 3. हु इज? सर बॉयज में सर हम है सर. वाओ वेरी गुड. थैंक यू. थैंक यू. ऑन योर कैमरा. कोई प्रॉब्लम नहीं. हम तुम्हारा फेस नहीं देखेंगे. टेंशन मत लो. तुम बहुत अच्छा देखते हो. फेस नहीं देखेंगे. कोई दूसरा भी कर सकते हो. अंकिता तुम भी कर सकते हो. कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम्हारा हम जो है कॉफी कप नहीं देखना चाहते. तुमको देखना चाहते. तो ऑन करो जल्दी से. हमारे एक्सप्लेन करने के लिए उतना टाइम देने से टाइम नहीं मिलेगा हमको. गाली खाना है का? क्या कितना हंस रहा है रे पापा. जल्दी जल्दी. आशीष यू कैन स्पीक. आशीष तुम्हारा हाथ ऐसा दिखाओ. सर ऑन कर दिया सर. हाँ आशीष तुम्हारा हाथ ऐसा दिखाओ. तुम्हारा कॉपी में नहीं देखना चाहता हूँ. तुम हाथ ऐसा दिखाओ. दिखाया? आशीष देखो तुम्हारा हाथ और हमारा हाथ देखो दोनों में बहुत डिफरेंस है. तुम्हारा हाथ बहुत छोटा है, हमारा हाथ बहुत बड़ा है. Am I right? क्योंकि हमारा हाइट भी बड़ा है तो तुम्हारे साथ हमारा हाथ भी बड़ा होगा. आशीष कैन यू हियर मी? आशीष कैन यू हियर मी? आशीष चुपचाप हो गया क्यों? जो भी है तुम लोगों को समझ में आया. हाथ हमारा बड़ा है उसका छोटा है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
यस सर। तो हम एक हाथ में जितना बालू उठा पाएंगे आशीष तो उतना नहीं उठा पाएगा। यस यस सर सर। आशीष उतना उठा पाएगा? हम जितना एक हाथ में बालू उठा पाएंगे आशीष उतना उठा पाएगा? नो कभी सर नहीं। हमारा हाथ से भी बड़ा हाथ होगा तो वो उससे भी ज्यादा बालू उठा पाएगा। Am I right? यस सर यस सर तो एक बार में कितना बालू उठा रहा है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है उसका डेटा बस के ऊपर। एक बार में कितना डेटा लेकर जा रहा है इधर से उधर, एक बार में कितना डेटा लेकर जा रहा है इधर से उधर, इसको बोलते हैं डेटा बस। इट विल बी डिपेंड अपॉन द डेटा बस। इज इट क्लियर? यस Yes, sir. तो बेसिकली मान के चलो इतना बड़ा हाथ हो गया, बहुत लंबा है। सबसे लंबा तो अभी क्या है ना, वो जो क्या नाम है उसका, जो भी है, खाली खली खली। ओके, तो वो एक हाथ में मान के चलो एक लॉरी वाली उठा सकता है, वो हम नहीं उठा सकते। तो ये डिपेंड करता है उसका कितना डेटा बस है। तो जितना ज्यादा उठाएगा उतना ही अच्छा, राइट? Yes, sir. यस सर तो ये डेटा बस हर एक टाइम बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। जितना प्रोसेसर आएगा उतना डेटा बस बढ़ते जाएगा, राइट? एड्रेस बस क्या है? डेटा बस समझ में आया? जितना ज्यादा डेटा बस होगा उतना ही अच्छा, उतना डेटा एक साथ चला जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? यस सर Yes, sir. राइट? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखो, कौन है? अविनाश। अविनाश तुम्हारा ये क्या है? पिन कोड कितना है? सर 822114 822114। सर जितेंद्र कॉपी सेंटर में कीजिए सर। कॉपी सेंटर में। हाँ यस सर। कॉपी सेंटर में आ गया? ठीक है सर। अभी हैं? कॉपी साइड में हो गया सर, थोड़ा सेंटर में कर लीजिए। ओ हाँ हाँ हाँ, सॉरी। हाँ ठीक है। और जितेंद्र तुम्हारा 834010. 834010। हमारा है 742188। देखो सबका अलग अलग पिन कोड है ना? Yes, sir. इसी Yes, से sir. पता चल जाएगा एक किधर का है, एक किधर का है, हम किधर का है। Am I right? यस Yes, सर This a address. This is the address. This kind of ये एड्रेस जनरेट करने के लिए कितना डिजिट लग रहा है? 1 2 3 4 5 6 डेसिमल डिजिट लग रहा है, राइट? Yes, sir. इधर में Yes, जो sir. एड्रेस जनरेट Yes, कर पाओगे sir. उससे वो तुम्हारा पास अवेलेबल है 16 बिट। यह है डेसिमल नंबर, यह है 6 डिजिट का डेसिमल नंबर। इधर है 16 बिट का क्या नंबर? बीट। व्हाट डू यू मीन बाय बीट? Beat is nothing but a binary number. Beat is nothing but a binary number. Is it clear? Yes, sir. तो Yes, sir. 16 बाइनरी नंबर से तुम कोई भी एड्रेस जनरेट कर सकते हो। You have a 16 address bus. You have a 16 address bus. Is it clear? आशीष तुमको हाथ Yes, sir. ऑन करने बोला, तुम मीटिंग से ही निकल गया, अभी फिर से आ गया। जो भी है, ओके आशीष, आई अंडरस्टैंड नेट के लिए नो इशू। आई नो हम सब थोड़ा मजा करता है, ये सब सोचना मत, हमें सब बहुत मजा करता है। क्लास में एंटरटेनमेंट नहीं होगा तो क्लास नहीं रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा। यस सर यस सर तो 16 बिट, ये जो 16 बिट है ये दैट विल बी बाइनरी नंबर, राइट? Yes, sir. 16 बिट बाइनरी नंबर क्या हो सकता है? बाइनरी नंबर में क्या क्या होता है बोलो? एक 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है बाइनरी नंबर में? नो No, सर। sir. नो, ओनली 0 एंड 1। Yes, तो sir. 16 बाइनरी नंबर से 16 1 16 बाइनरी नंबर से 16 1, राइट?
इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद क्या होगा बोलो तो? नेक्स्ट क्या होगा? ऑल आर 0, इन द लास्ट इट विल बी 1, 1, yes sir. then 1 0, then 1 0, 1 1, then 1 0 0, as one. पूरा सारा कॉम्बिनेशन हम लिखेंगे शुरू से लास्ट तक, तो ये कॉपी बहुत छोटा पड़ जाएगा और आज का क्या क्लास काल भी खत्म नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो मैंने सिर्फ शुरुआत वाला लिखा, लास्ट में वाला लिखा। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0 0 0 0, इधर F F F F, राइट? Yes, अभी sir. बोलो इसका बीच में कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है? जैसे बोला सब 0, नेक्स्ट वाला 0 1, नेक्स्ट वाला 1 0, नेक्स्ट वाला 1 1, नेक्स्ट में 1 0 0, नेक्स्ट 1 0 1, ऐसा करके कितना कॉम्बिनेशन होगा बोल सकते हो? परमुटेशन कॉम्बिनेशन इन क्लास 12, 2 to the power 16. 2 to the power 16 कैसे सर? वो भी समझना पड़ेगा। सर एक्चुअली एक नंबर का कितना स्टेट है? एक नंबर का कितना स्टेट है? 2, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो इसीलिए 2। कितना नंबर है सर? 1 2 3 4, कितना है? कितना मिलता है? 16. 16। ये है परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, राइट? Yes, 90% केसेस, 90% केसेस स्टूडेंट डू द मिस्टेक। जब मेमोरी बोलता है, जब कितना मेमोरी कैपेसिटी, तब बोलता है 2 to the power 16। इट इज अ वेरी रॉन्ग आंसर, इट्स अ वेरी रॉन्ग आंसर। सर 1 मेगाबाइट होगा सर। नो नो सर, देखते हैं ना कितना होता है। ये वेरी रॉन्ग आंसर। कैसे होगा तुमको जानना चाहिए। हर एक मेमोरी लोकेशंस में, ये तो मेमोरी लोकेशंस है। 2 to the power 16 इज द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस। 2 to the power 16 इज द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन। एक एक मेमोरी लोकेशन में मान के चलो 8 बिट करके डेटा है। एक एक मेमोरी लोकेशन में 8 बिट करके डेटा है, राइट? यस सर। तो 8 बिट करके डेटा है, तो कितना मेमोरी होगा? 2 the power 8। हमारे पास 3 जमीन रामगढ़ में खरीदा है, 3 जमीन हम सिंदरी में खरीदा है। टोटल एरिया ऑफ लैंड कितना है हमारा? सर बोलो। कितना एरिया? हाँ? टोटल एरिया ऑफ लैंड कितना है? 3 जमीन खरीदा है रामगढ़ में और 3 जमीन खरीदा है, 3 जमीन खरीदा है सिंदरी में। टोटल कितना जमीन है हमारा? टोटल लैंड कितना है? सर बोल नहीं पाओगे क्योंकि सर एक एक कितना बड़ा है, एरिया है कितना है वो बोला नहीं है। Am I right? यस सर। मान Yes, के sir. चलो Yes, sir. 4 एकर्स करके है, तो कितना होगा? 24 एकड़। 24 कैसे एकड़। हुआ सर? 24 एकड़। नंबर ऑफ लैंड कितना है? 6। एक एक का कितना है? 4। 6 into 4 is equal to 24। तो इधर नंबर ऑफ लैंड कितना है? 2 to the power 16। हर एक में कितना है? 8 बाइट 8 बीट। और बीट, हाँ। So 8 bit, 2 to the power 16 into 8 bit. Is it clear or not? यस सर। Yes, sir. तो Yes, क्या sir. होगा? 2 to the power 6 into 2 to the power 10। 8 बिट के जगह में हम बाइट लिख देंगे। ओके? 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। Yes, sir. सो इसलिए बाइट लिख 2 to the power 6 मतलब 64। 2 to the power 10 means 1024। उसके बाद बाइट, सो हो जाएगा 64। 1024 मतलब के हो जाएगा किलोबाइट। 64 किलोबाइट।
ओके ये टोटली डिपेंड करता है एड्रेस बस के ऊपर, नो डिपेंड अपॉन द डेटा बस। ये 8 बिट हर एक के लिए 8 बिट होता है, मेमोरी सेल का साइज है। 86 के लिए 8 बिट, पेंटियम 4 के लिए 8 बिट, सब के लिए 8 बिट। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, sir. ये इंटरव्यू Yes, sir. कॉमन क्वेश्चंस है। मेमोरी कैपेसिटी कितना है, कैसे आता है, मैक्सिमम टाइम में क्या कंफ्यूज करता है, हम बोल देते हैं। तुम बोलोगे 64 KB, उसके बाद पूछेगा B इज फॉर बीट और बाइट। जब तुम बाइट बोलोगे तब तुमको पूछा जाएगा कि 16 तो बीट था, तो बाइट कैसे आ गया। तुमको ये कैलकुलेशन इनटू 8 बिट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक मेमोरी लोकेशन में 8 बिट करके डेटा रख सकता है। क्लियर? Yes, sir. So that's why 64 किलोबाइट। तो 8086 के हिसाब से देखा जाएगा तो क्या होगा फॉर 8086, जिसका एड्रेस बस है 20 बिट। अब बोलो इसका मेमोरी कैपेसिटी कितना होगा, बोल पाओगे? कैसे? टोटल बोलने का जरूरत नहीं, कैसे होगा, कैलकुलेशन क्या होगा? 2 to the power 20 into 8. वेरी गुड, 2 to the power 20 into 8 बिट। यही तो हम चाह रहा था। इजिकल 2 to the power 10 into 2 to the power 10 बाइट लिख सकते हैं हम। यस सर। 2 to the power 10 मतलब 1024 into 1024 बाइट, राइट? बोल सकते हैं 1024 किलोबाइट। Kilobyte, yes, sir. इसको हम बोल सकते हैं 1 मेगाबाइट। ये है 8086 का। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. क्लियर टू Yes, sir. ऑल? Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू। चलो एक कंपैरिजन देखते हैं तीनों प्रोसेसर का। एक है 4004, एक है 8085, एक है 8086। एड्रेस बस डेटा बस मेमोरी कैपेसिटी क्लॉक फ्रीक्वेंसी ईयर ऑफ इंट्रोडक्शंस। कौन सा ईयर में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? पहले 8085 में लिखते हैं एड्रेस बस कितना बिट का है, बोल दिया मैंने। 20. नो, 8085 का 16। 16। डेटा बस कितना बिट का है? 8 बिट, याद रखना सब। मेमोरी कैपेसिटी कितना का है? 64 KB। 64 KB। 4 किलोबाइट। क्लॉक फ्रीक्वेंसी याद रखना 3 to 5 मेगाहर्ट्ज। ये क्या है, इसके ऊपर क्या डिपेंड करता है, हम आ रहा है। ये हुआ था 1974 में। इसका जरूरत नहीं है, याद रखने का जरूरत नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं तुम्हारा जानकारी के लिए। मगर ये तीनों हैवी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू वाइवा सब जगह में क्वेश्चन आएगा। 8086 का 20 बिट, डेटा बस 16 बिट, मेमोरी कैपेसिटी 1 मेगाबाइट, क्लॉक फ्रीक्वेंसी 5 to 10 मेगाहर्ट्ज। 1 megabyte। 4004 का 10 बिट, डेटा बस 4 बिट, मेमोरी कैपेसिटी 1 KB, क्लॉक फ्रीक्वेंसी 750 किलोहर्ट्ज। 1972 1976
अभी बोलो देख के क्या याद आ रहा है? एड्रेस बस इंक्रीज किया है, मतलब इंक्रीज करना मतलब मेमोरी कैपेसिटी बढ़ेगा, इसलिए इंक्रीज कर रहा है, राइट? डेटा बस वो भी देखो इंक्रीज किया है, मेमोरी कैपेसिटी वो भी देखो इंक्रीज किया है। कोई भी नेक्स्ट मॉडल आ रहा है, कोई भी अच्छा मॉडल आ रहा है, इन तीनों के ऊपर ध्यान दे रहा है बहुत ज्यादा। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, दैट इज द क्लॉक फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes sir. सो बेसिकली अभी बोलो क्लॉक फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? एक रिलेशन है टी एंड एफ के बीच में, टी इज इक्वल टू 1/f, एम आई राइट? यस सर। तो फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ेगा उसका टाइम उतना रिड्यूस होगा, घटेगा, मतलब वो मशीन उतना ज्यादा फास्ट होगा। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा टाइम कम लगेगा, वो मशीन उतना फास्ट होगा। हम आकर ऐसा भी पढ़ा सकते हैं, व्हाट डू मीन बाय पीसी? पीसी इज नथिंग बट प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट टू बी एक्जीक्यूटेड दैट इज स्टोर्ड इनटू द पीसी, दैट इज फंक्शन ऑफ प्रोग्राम काउंटर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? No sir. That's why I am No, just sir. given a small word. Sometime faculty ऐसा भी बोल सकते हैं, चलो आज तुम लोगों को हम माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाएंगे, आज तो टाइम हो गया, कल शुरू करेंगे। मतलब इट विल बी डिपेंड अपॉन द क्लॉक फ्रीक्वेंसी। एवरी पर्सन का अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना फास्ट होगा कितना स्लो होगा। तो माइक्रो प्रोसेसर का ये है, इसका 750 किलोहर्ट्ज में था, इसमें चला गया मेगाहर्ट्ज में, इसमें भी चला गया मेगाहर्ट्ज में। अभी तुम देखो, अभी तुम सोचो, जे तुम सोच सकते हो सर 8085 में तो हम 5 to 10 भी कर सकते थे, है कि नहीं? यस सर। अभी अंकिता को लेकर एक एग्जांपल देता है। अंकिता, एक दिन में कितना चावल खाते हो, कितना ग्राम का? अंकिता, कैन यू हियर मी? यस सर। क्वेश्चंस नॉट क्लियर? क्वेश्चन मैंने सुन नहीं रहे थे? नहीं सर, सुने। हैं, कितना ग्राम का चावल लेते हो हर एक डे? अरे 100 ग्राम। 100 ग्राम। सर हम 1 किलो लेते हैं, 1 किलो मान के चलो, सच नहीं है, मान के चलो 1 किलो। अंकिता कल से कोशिश करेगा जब हम सर जैसा बनेंगे, माइक्रो प्रोसेसर को सर जैसा बनना है, तो शुरू किया 1 किलो चावल खाना। अंकिता ले पाएगा? नहीं सर। नहीं हो पाएगा, उसका कैपेसिटी का बियॉन्ड जा नहीं सकता है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया था 8085 में, वो मैक्सिमम 3 to 5 मेगाहर्ट्ज में ही काम करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। अभी एक क्वेश्चन ईएम थ्योरी में क्या क्वेश्चंस पूछे थे टीचर ने? रोल नंबर 16, तुम तो पूरा साइलेंट हो गया। No sir, I'm listening. तो तुमको क्या क्वेश्चंस पूछा गया था ईएम थ्योरी से? So EM theory से नहीं पूछा था, मतलब as a situation I have faced in the interview. नो, ईएम थ्योरी से क्वेश्चंस पूछा गया था ना, जो इसी का फैकल्टी पूछा था। हाँ, yes sir. क्या क्वेश्चन था? What do you mean by EM theory? Like, Why EM theory is called EM theory? yes sir. तो ऐसा भी तो कोई पूछ सकता है, why microprocessor is called microprocessor? Yes sir. किसी के पास कोई आंसर है? कोई बोलना चाहते हो why microprocessor is called microprocessor? नो सर। छोटा इन साइज। सर उसका नाम लगा। हाँ बोलो, बोलो सर। चलो देखते हैं, हम 8085 का माइक्रोप्रोसेसर पकड़ रहे हैं, 8085 का हम पकड़ रहे हैं, यू नो फ्रीक्वेंसी इज 5 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज 5 मेगाहर्ट्ज। इज इट क्लियर? यस सर। तो टी इज इक्वल टू क्या होगा? 1/5 मेगाहर्ट्ज। वेरी गुड, 1/5 मेगाहर्ट्ज।
मेगा मतलब क्या होता है? 1/5 into 10 के पावर 6 हर्ट्ज। हाँ, यस सर 1/हर्ट्ज मतलब क्या होता है? सेकेंड होता है। सो 1/5 into 10 to the power -6 सेकेंड। ओके, यस सर। इक्वल टू 0.2। 1/5 मतलब क्या होता है? 0.2, राइट? यस सर। 0.2 माइक्रोसेकेंड। 0.2 10 to the power 6 की जगह में माइक्रो लिख दिया, Microsecond. सेकेंड तो 7 सेकेंड। क्या आया? माइक्रो आया, इसलिए इट्स कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। क्या आया? माइक्रो आया। अभी जो प्रोसेसर है कोर i3, कोर i5, कोर i7 किसमें काम करता है? गीगाहर्ट्ज में। किसमें काम करता है? व्हाट इन गीगाहर्ट्ज। तो गीगाहर्ट्ज में काम करेगा तो उसका तो माइक्रो क्यों होगा? नैनो होगा, नैनो प्रोसेसर होगा, और उससे भी कम हो सकता है। तो इसलिए हम लोग चालाकी के साथ, मतलब गड़बड़ ना हो इसी के लिए हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर तो सभी है, इसके अंदर माइक्रो भी है, नैनो भी है, सब कुछ है। और हम लोग अभी चालाकी के साथ बोलते हैं प्रोसेसर, मगर वो कुछ नैनो माइक्रो कुछ भी तो होगा। इज इट क्लियर? यस सर। इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो प्रोसेसर। सर एनी डाउट्स? नो सर नो सर। अच्छा, टुमारो देयर विल बी अ क्लास ना? हेलो? Yes, sir. Yes sir, according to the routine we have a class tomorrow. I already create a group, Google group. यस सर हम उस ग्रुप में नोट्स वगैरह, आज के क्लास का नोट्स कुछ होता नहीं है, हमारा क्लास का वीडियो ही है नोट्स। हम वीडियो सब यूट्यूब में देके तुम लोगों को उस ग्रुप में दे देंगे, तुम लोग उधर से मिल जाएगा सबको, ठीक है? यस Okay, सर। sir. अच्छा, Yes, sir. दूसरा एक चीज है, अंकिता, यू सेंड मी ग्रुप में दे देना, और नहीं तो नेक्स्ट दिन हमको मेल कर देना। तो आज का अटेंडेंस मेल कर देना, कौन कौन है, with name and roll number. I am getting 15 students only today. Only 15, not 50% also. Is very bad luck for me. Tomorrow class होगा ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा. Tomorrow I will be take the class from 4 o'clock. Okay. Okay, sir. I will be Yes. take the class from 4 o'clock. I have a meeting. So after that, I will be take the class from 4 o'clock. I will be given the link to madam. Madam will be share with you. ओके सर। Okay sir. Okay, sir. Any doubts from today's class? No sir. If doubt, you can ask tomorrow also. No issue. ओके सर। ठीक है? मतलब बहुत ज्यादा टफ लग रहा है क्या? No. No, sir. Easy है. any टास्क लगा आज के पढ़ाई में? कुछ प्रॉब्लम हुआ? बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ? मतलब कोई टफ? No. No sir. No, sir. No sir. देखो कोई टफ लगे तो हमको जरूर बताना, हम कोशिश करते हैं इजी करके बताने के लिए, और भी इजी करके हम बताना चाहते हैं, जैसे तुम लोगों को टफ ना लगे। ये सब्जेक्ट कम से कम बोझ ना बने तुम लोगों का, तो हमारा खराब ही लगेगा, राइट? यस सर। यस सर। Yes, sir. यू एंजॉय द क्लास ना? Yes, sir. Yes sir. थैंक यू टू Thank you ऑल। sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू सर। कल हम लोग फिर 4 बजे मिलेंगे, ठीक है? Okay sir. Yes, sir. Okay. थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू